24th January every year since 2009 is is observed as the International Day of the Endangered Lawyer. Actually, the Indian Association of People's Lawyers, which was formed in 2004 in Bombay, and it has a All India organization, has joined with the International Association of People's Lawyers. And this association since 2009 has been observing, along with around 6-7 more lawyer bodies throughout the world, especially in the European Union, has been observing the 24th of January as the International Day of an Endangered Lawyer. We have taken this opportunity to observe this day as actually the international campaign focuses on one country each year. And this on this year in 2017 they are trying to focus on China. In 2015 itself there was a massive crackdown of lawyers in China where human rights lawyers were kept in detention for almost 6 months. Some have been kept in jail till now. So that to focus and to highlight the human rights abuses or the rights of a lawyer to defend his accused, his or her accused, this day is being observed. And while we thought in India that we will be focusing on the international endangered lawyer, especially in China, we thought it would take the opportunity also to talk about the situation of lawyers in our own country. Today we have actually Shalini Gera, who has been a advocate and she has been practicing in Chhattisgarh, and she will basically speak on the problems that lawyers face in Chhattisgarh. And actually we thought about to focus on not only Chhattisgarh, but there are various places where there are people's struggles going on in Chhattisgarh or in Kashmir or in various places of the country, and where a lawyer, once he tries to defend, he or she tries to defend the accused, whether he's a so-called terrorist accused or a Naxal case or a Kashmiri case, as soon as he defends the accused, he is identified with the politics of the accused. This has happened in Kashmir. This happens in Chhattisgarh. Actually, Shalini Gera will later on speak on how in Chhattisgarh, although many lawyers have been working there, they have been named regularly targeted by the police machinery and called Naxali lawyers. In fact, the recent terminology which the police has been using to target them is calling them Safed Posh Naxali. In fact, just yesterday there has been an attack on Bela Bhatia, who being a lawyer also is a social worker and a researcher, and recently, only yesterday when she was in Chhattisgarh, at a place, a group of around 30-40 people came there and told her that she has to vacate a place. So Shalini Gera will speak basically on the situation of lawyers in Chhattisgarh. Along with Shalini Gera, we'll also have Raghunath, who has he's a member of the Civil Liberties Committee in Telangana. Raghunath has been recently defending the case of 7 democratic rights activists who have been arrested. Actually, they were illegally arrested in Telangana. They were going on a fact-finding mission to Chhattisgarh. They were picked up in Telangana and they were given to the cops of Sukma, Chhattisgarh, and they have been jailed since 26 December. Among them are 2 lawyers they are members of IAPL also, Ravindra and Chitru Prabhakar, and other members of the group who were arrested are civil and democratic rights activists. So Raghunath will specifically speak about that case, and especially in that case you will see how the lawyers or the civil democratic rights activists have been targeted on such flimsy grounds, or it's by prima facie it's a very fabricated case, it's a very made up case. In the day also we'll be releasing a fact-finding report that IAPL conducted on the plight of lawyers in Chhattisgarh. As I mentioned earlier, the IAPL in March last year we took out a fact-finding team, and Shalini and a few other lawyers were actually erected from Jagdalpur. IAPL thought that it was best to, as lawyers, to bring out this issue of how lawyers are being harassed in Chhattisgarh.
And last year we took out a fact-finding team to Chhattisgarh, and we have prepared a report about the way lawyers have been targeted there. And it's not only JAGLAG, the Jagdalpur Legal Aid Group, but even prior to the Jagdalpur Legal Aid Group, how 4 or 5 lawyers have been targeted out there. So Marak would just briefly talk about the report, and then if Mihir could say a few words and release the report. Marak? थैंक यू। हेलो, जैसे अभी अरुण ने बताया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स के कई लॉयर छत्तीसगढ़ गए थे, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि छत्तीसगढ़ के लॉयर्स पे बहुत से अटैक हो रहा है, स्पेशली जैगलैग जो है जगदलपुर लीगल एड ग्रुप। उन लोग पे वो लोग जब वकालत करने को जाते थे, किसी ना किसी कारण उन लोग को रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो हर देश में से 12 लॉयर वहाँ गए थे, अलग अलग इलाके से, चंडीगढ़ से गए थे, मुंबई से गए थे, नागपुर से गए थे, हैदराबाद से गए थे, टू इंक्वायर इनटू दीज अटैक्स ऑन लॉयर्स इन छत्तीसगढ़। और आज जैसे एंडेंजर्ड लॉयर्स डे है, इंटरनेशनल एंडेंजर्ड लॉयर्स डे, तो हमने सोचा कि ये बहुत एप्ट डे है जब ये रिपोर्ट का हम रिलीज कर सकते हैं। मगर जगदलपुर लीगल एड ग्रुप को क्या हुआ वहाँ, तो अपनी शालिनी है जो डिटेल में बताएंगी कि जगदलपुर में क्या हो रहा है। मगर जब हम गए, हमने देखे कि जगदलपुर लीगल एड ग्रुप नहीं, कोई भी वकील वहाँ काम करते हैं जो सरकार की जो एंटी पीपल डेवलपमेंट पॉलिसी है उसको रेजिस्ट करते हैं, अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं, और जो भी वकील उन लोग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ ना कहाँ उन लोग पर दमन होता है। उन लोग को उठा देते हैं, उन लोग को फॉल्स केसेस में बंद कर देते हैं, उसको अरेस्ट कर देते हैं, थ्रेटन कर देते हैं कि वे लोग ये जगह छोड़ के चले जाए। यही एक कोशिश है सरकार की कि कैसे हम उनको ये एरिया में से बाहर निकाल दे, कि जो उन लोग को करना है, लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको कुछ भी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले। ये है उन लोग की कोशिश। और हमने बहुत से वकीलों के साथ बात किए। एक थे एडवोकेट अमरनाथ पांडे, उस पर तो इतना दमन किया कि उसको अपना घर छोड़ के चल दिए जाना पड़ा, और फिर अल्टीमेटली उसको हाईकोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दिया। फिर है एक रेखा परगानिया, उसको भी अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके घर में से बहुत इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला। क्या इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस थे? उनके क्लाइंट के केस पेपर्स, तो वो बन गया इंक्रिमिनेटिंग, और 1 साल तक उसको अंदर रखा। और ये केस बहुत वीक होते हैं, तो अल्टीमेटली एक्विटल तो मिलने वाला है, मगर सालों और साल वे लोग अंदर रहते हैं। और दूसरी तरह बात है कि बार एसोसिएशन जो वकील के इंटरेस्ट के लिए लड़ाई करने हैं, वे लोग भी अपना दमन करते हैं वकील पे कि आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कुछ इलीगल रेजोल्यूशंस पास करते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस बंद करने की प्रयत्न कहीं ना कहीं तरह करते हैं, मदद करने के बदले ये करते हैं। और पुलिस अपने अल्ट्रा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं जो भी हेल्प करते हैं। बार एसोसिएशन उनके भी मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके से यहाँ बहुत दमन हो रहा है। और अल्टीमेटली IAPL क्या मानते हैं कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए। अगर हम लोगों की फेयर ट्रायल के बारे में बात करते हैं, तो वकील फेयर ट्रायल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फेयर ट्रायल के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जहाँ लीगल रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलना चाहिए, वकीलों का है, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि जो भी प्रोफेशन हमें करना है, या कहाँ ना कहाँ लीगल एड की बात तो करते रहते हैं, मगर जब कोई सच में लीगल एड करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारण आप उसको रोक पाते हैं। तो यही सिचुएशन है वहाँ। तो अल्टीमेटली ये है कि सब लोग का आवाज़ क्रश करना चाहते हैं। जर्नलिस्ट देखो,
जर्नलिस्ट कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, वकील काम करना चाहते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा वातावरण क्रिएट किया है कि जो डिसेंट कर रहे हैं उसको आवाज़ ही न हो। तो ये सब बात हम लोग ने हमारे रिपोर्ट्स में लिखी है, मगर अंत में मेरे को ये भी बताना है कि जो भी दमन करते हैं लोग में, फिर भी वकील लोग अपनी वकालत कर रहे हैं ये वातावरण में, जर्नलिस्ट को लिखना है वो लिख रहे हैं, मगर दमन बहुत है। तो यहाँ अभी हम हमारा जो रिपोर्ट है वो रिलीज करेंगे। It was in 1893 or 1894. For the first time, it was legally made. It was legally recognized that a person has a right to be represented by a lawyer. So before that, you had courts, but the legal right to be represented by the lawyer came only for the first time in around 1893. Mic is working, no? Okay. It is, you have to hold it closer. Can you hear me? Yeah. Okay, fine, that's great. So it was only around 1893 that it was first time recognized. And after that, उसके बाद 1893 में रिकग्नाइज हुआ। उसके बाद बहुत सालों तक सवाल ये भी आता था कि आपने लीगल रिप्रेजेंटेशन की तो बात की, लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वकील, पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना। और बाद में आफ्टर द इनिशियली चालू हुआ तमिलनाडु वगैरह बहुत जगह पे लीगल एड स्कीम्स, लेकिन अल्टीमेटली लीगल एड एज पार्ट ऑफ आवर लॉ केम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आज का जो दिन है, आज पेपर पे तो है, जैसे बहुत कानून है पेपर पे तो है कि हर एक व्यक्ति को लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लीगल एड मिलनी चाहिए अगर उसके पास नहीं है तो। लेकिन ये पेपर कागज़ पे है, जैसे बहुत कानून हमारे कागज़ पे है, वैसे ये भी एक कागज़ पे है कि सबको मिलना चाहिए। एक्चुअल रियलिटी में ये होता नहीं है। और होता नहीं, उतना ही नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ की जो यहाँ का सवाल है वो तो उससे भी ज़्यादा है कि एक तो जो देने की कोशिश करते हैं उनको भी आप रोक रहे हैं, जो देने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं, उनको आप मार रहे हैं, उनके ऊपर आप दमन कर रहे हैं। यही परिस्थिति अगर आप देखें तो कश्मीर में है, बहुत जगह मणिपुर में है, कई जगह पे यही परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी कि कानून में तो दुनिया को दिखाने के लिए कानून तो ला दिया कि यहाँ सब आपको मिल जाएगा, लीगल एड है, ये है वो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ये होता नहीं है और लोगों को रोका जाता है। और ख़ास करके, और ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में भी यही हुआ था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद और भी बढ़ा है। ये भी हमें ये करना चाहिए। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, पुलिस की बात नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर के जो छत्तीसगढ़ को खास करके हम ध्यान में रखें तो कॉरपोरेट सेक्टर के जो इंटरेस्ट है कि उनकी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उनके जो अलग अलग, क्योंकि जैसे आप रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि भारत की काफ़ी ज़्यादा माइनिंग छत्तीसगढ़ में है, आयरन हो रहा है, 23 अदर मिनरल्स है, काफ़ी ज़्यादा माइनिंग वहाँ हो रही है। तो उनके जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के लिए आदिवासियों को कैसे दबाया जाए, कैसे उनको वहाँ से हटाया जाए, और वो हटने के सामने और हटाने के सामने सिर्फ अपने कानूनी अधिकार मांगने के लिए जब लोग लड़ते हैं तो उनको कैसे दबोचा जाता है। तो ये रिपोर्ट अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें से ये जाहिर होगा, हमारे सामने आएगा। तो मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी को कि अभी आप आगे बात करें, क्योंकि आई बेसिकली हैव कम टू लिसन टू बोथ ऑफ यू एंड जस्ट अ फॉर्मेलिटी ऑफ रिलीजिंग द रिपोर्ट, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।